हेलो एंड वेलकम टू स्टॉक मार्केट गुरुजी। आप सभी को पता है कि पिछले 2 साल में इंडिया में स्टॉक मार्केट का क्या हाल है। मतलब इतनी तूफानी आए लास्ट 2 साल में कि ये हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। कोई भी बंदा कोविड के पहले ये गेस नहीं कर सकता था कि मतलब कोविड के बाद इतने तूफानी आएगा, इतना तूफानी आ गया मार्केट में, इतना हलचल मच गया। So that is something unbelievable. So stock market Guruji is all about making you aware of what is going on in the stock market. And in each video, I'll be recommending one stock. Some of the stocks may be in my portfolio. And if I recommend any stock and if that stock is in my portfolio, I'll let you know. Starting about stock market, first thing you need is to have a demat account. And for that demat account, I always prefer Angel One. It used to be Angel Broking earlier, and now it's Angel One. Even its share is available in the stock market. You can check. And to get the link of the Angel One app, you can check the description. Description में मैंने इसका जो link है वो डाल दिया है. And as I've already told you, you can get that app and you can get plenty of benefits. So you can just check the description box from where you can download the app. Now coming to our video today. Today we are going to talk about a stock that is a very important stock, and we like whenever we hear about anything about oil, the one name that comes to our mind is Indian Oil Corporation. Presently you can look the rate of this stock, amazing stock, is 123. आप मार्केट में इंडियन ऑयल के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। कोई लोग आपको बताएगा कि इंडियन ऑयल मत खरीदिए, कोई बताएगा कि इंडियन ऑयल खरीदिए। बट हम क्यों, वाई टू परचेस इंडियन ऑयल स्टॉक जब मार्केट में इतने सारे अच्छे अच्छे और भी ऑयल स्टॉक्स हैं? फर्स्ट थिंग, यू वांट स्टेबिलिटी इन दैट स्टॉक दैट यू आर गोइंग टू परचेस. Indian Oil Corporation does have that stability because it's a PSU, because it's backed by the government. और गवर्नमेंट जब भी किसी कंपनी को बैक करता है या गवर्नमेंट पीएसयू में, एक चीज तो साफ है, वहां पर मतलब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एकदम डाउनफॉल हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा, इस टाइप का कुछ नहीं होगा. इवन इफ प्राइवेटाइजेशन इज देयर, यू कैन एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट. व्हेनेवर कभी भी कोई अगर पीएसयू प्राइवेटाइज हो जाता है तब उसका भाव, जो मार्केट में जो भाव है, दैट बिकम्स मेनी फोल्ड्स, और ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन है. सो दिस इज all about Indian Oil Corporation. You can see that I've come to the home page of ticker tape on Indian Oil Corporation, and here you can see the intrinsic value, it's in green. Then the return versus FD rate. One of the most important aspect of investing in Indian Oil Corporation is that its return is much above than the fixed deposit. We middle class people, we always think of a certain return from whatever amount that we're investing, and Indian Oil always gives you through its dividend. Stock offers good dividend returns. I'll show you how much dividend is paid by the stock Indian Oil. So one of the reasons, most important reasons for purchasing this stock of Indian Oil Corporation is its handsome dividend payouts. Just have a look. November 11, 2021, cash dividend per share ₹5. So if you had 100 share by then, you would have got 500 rupees. Then in August 2021, 1.5 ₹1.5. उसके पहले March 23, that Indian Oil gave ₹3. February 2021, 7.5. उसके पहले हम लोग देख सकते हैं 4.25 इन मार्च 23, 2020. उसके पहले ₹1, 1.5, 6.75. जस्ट लुक एट हाउ कंसिस्टेंटली इंडियन ऑयल हैज बीन गिविंग डिविडेंड्स. 2018 में 3 बार, 19 में 2 बार, 20 में 1 बार. हमको पता है कि 20 में क्यों, आप सभी को पता है कि 20 में व्हाट हैपेंड, दैट कोविड पैंडेमिक ब्रोक आउट. और उसके बाद से देखिए 21 में 1, 2. इफ वी कंसिडर द फाइनेंशियल ईयर, तो 20-21 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इट गेव एक बार दिया था. 2021 में दो बार, 2000 फरवरी में 1 बार, मार्च में 1 बार. और कमिंग जो अभी जो चल रहा है, प्रेजेंट जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें ऑलरेडी इट हैज़ गिवन अ डिविडेंड ऑफ 6.5 रुपीज़ टोटल. कितने बार दिया है? 2 बार दिया है.
अगस्त में, नवंबर में, एंड वी कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग मार्च एज वेल इट इज गोइंग टू पे सम डिविडेंड. सो overall, if we can see, Indian Oil gives around current dividend yield is 9.49%. So you can expect something around 10.5 rupees if you purchase per year, if you purchase a share of 123 rupees, which is much above than the fixed deposits. Now let's see the forecast. अभी देखिए स्टॉक मार्केट में बहुत सारा शेयर्स है एंड मोस्ट ऑफ द शेयर्स दे आर इन देयर ऑल टाइम हाई, near their all-time highs, but Indian Oil Corporation is presently much below the all-time high. इसका जो ओवरव्यू, if you look at the overview, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न इसका देख लेते हैं एक बार. तो देखिए, तो इसका मोटा मोटी लगभग ये इस जगह पे इसका ऑल टाइम हाई था. दिस इज अराउंड 214 समथिंग, 214-15 इस टाइप का, और अभी ये चल रहा है ऑलमोस्ट हाफ या हाफ से थोड़ा कम. So it has a potential to achieve this scale, and I'm telling you, if you invest in this stock, then very soon, because we are seeing some changes in the oil industry, very soon Indian Oil can reach this peak, and that trend has already started. देखिए 20 सितंबर या मार्च में देखिए इट वाज अराउंड, अप्रैल में ये, मार्च में ये 78, अप्रैल में 78, उसके बाद से देखिए लगातार गिरावट के बाद फिर से रिडेम्पशन हुआ इसका, फिर से गिरावट, फिर से रिडेम्पशन, फिर से गिरावट, फिर से रिज्यूम हो गया, फिर से गिरावट हो गया, अभी ये ऊपर की तरह जा रहे हैं. सो यू कैन एक्सपेक्ट, देखिए ये फॉर द लास्ट 2 years इसका चार्ट पैटर्न देखिए हमेशा ये ऊपर की तरफ भाग रहे हैं. So we can expect some very good changes, positive changes in Indian Oil. And if you can just look at its forecast, तो उसमें देख सकते हैं 78% एनालिस्ट, 32 में से टोटल 78% एनालिस्ट दे आर सजेस्टिंग दैट इन्वेस्टर्स कैन बाय दिस स्टॉक बिकॉज इट इज अ सेफ स्टॉक, इट ensures safe return, it ensures that your money is in safe hands. And as I have already mentioned कि ये this can touch its all time high very soon. तो टिकट टेप इज ऑल्सो सजेस्टिंग कि मतलब जनवरी 2023 में दिस कैन गो एज हाई एज 2210, और अगर कुछ गड़बड़ भी हो गया 117 इसका लो हो सकता है. इसके मतलब अभी जो करंट प्राइस है उससे 6 रुपये कम हो सकता है, बट एट द सेम टाइम दे आर पेइंग अ डिविडेंड ऑफ अराउंड 10.5 रुपीज़ पर 100. सो यू कैन जस्ट एक्सपेक्ट कि यहाँ से मतलब इसका फिनेंशियल्स भी अगर देख लेते हैं तो हायर देन इंडस्ट्री नेट इनकम इसका पॉजिटिव है, लोअर देन इंडस्ट्री रेवेन्यू ग्रोथ, क्योंकि पता है कि आईओसी का परफॉर्मेंस लास्ट फ्यू ईयर्स में थोड़ा सा खराब है, बट नाउ इट हैज़ रिवाइव्ड इट्स परफॉर्मेंस. और पीएस में अगर देखते हैं तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इज़ फेमस फॉर इट्स डिविडेंड यील्ड, एंड इसके बाद होल्डिंग्स, दिस इज समथिंग टू लुक आउट फॉर. होल्डिंग्स में आप देखिए, मतलब हम सितंबर में देखते हैं या जून में देखते हैं, जून में इसका होल्डिंग में आप देखिए टोटल प्रोमोटर होल्डिंग वाज 51%, म्यूचुअल फंड 4, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस 8, एफआईआई 6.7. उसके बाद देखिए 6.7 वाला हो गया कितना, 7.2. मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस स्टॉक, और प्रोमोटर होल्डिंग तो सेम ही है. उसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एफआईआईज देखिए 7.94 हो गया. मतलब फॉरेन इन्वेस्टर्स आर टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस स्टॉक बिकॉज दे नो समथिंग इज कमिंग वेरी गुड इन द नियर फ्यूचर. So I will recommend everyone to use this, to have this stock in their portfolio. And as a disclaimer, I must tell that this is one of my favorite stocks, and it is already in my portfolio for a long time. So you can consult your financial advisor before buying this stock. But I will always recommend this stock as a very good stock for your portfolio. We are finishing the video here, and very soon we'll meet again. Thank you.